Jai Hind. Today we will study the remaining parts of a question of trust, means part 2. In part 1, as we notice that when Horace went for thefting, जब वो चोरी करने के लिए जाता है तो एट दैट टाइम देयर वाज अपीयर्ड अ लेडी, एक लेडी जो है वो वहां पर प्रकट होती है और व्हेन ही वाज गोइंग टू ओपन इट, मीन्स ही वाज नियरली अबाउट टू ओपन इट, वो उसे खोलने ही वाला था. At once that lady appeared before him and said, "What are you doing?" Okay, let's carry on by topics. It was a quite kindly voice, but one with firmness in it. Means when that lady spoke, it was a very sweet voice. Means it was very sweet and it was very polite voice, but there was firmness in her voice. A woman was standing in the doorway, means when he looked toward her, she was standing at the door. And Seri means the dog. Seri was rubbing against her. वो जो कुत्ता था वो means when Horace entered the room, at that time she started to bark, but when lady came at that time, she went near her and started to rubbing, उससे जाके चिपक जाता है. शी वाज यंग, क्वाइट प्रेटी. और यहां पर होरेस बता रहा है कि दैट लेडी वाज वेरी ब्यूटीफुल, प्रेटी, एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, एंड शी वोर रेड ड्रेस. शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर. वह क्या की, वह चलते हुए मीन्स सी केम नियर टू द गैरेट, जो अलाव था अलाव के पास आई, एंड सी स्टूड देयर, वहीं पर आकर खड़ी हो गई. डाउन सेरी सी सेड. अब सेरी, एज आई टोल्ड यू, इट इज द नेम ऑफ द डॉग. मीन्स व्हेन सी केम एट दैट टाइम सी सेड टू द सेरी, Seri, what are you doing? Sit down calmly. Anyone would think I had been away for a month, and she told to Horace that मुझे पता है कि सब लोग यही सोचेंगे कि ये तो बाहर गई थी, अभी चली कैसे आई. तो उसने बोला भी कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई थी. शी स्माइल्ड एट हॉरेस एंड वेंट ऑन, मीन्स शी लुक टूवर्ड द हॉरेस एंड शी स्माइल्ड एंड शी वाज कंटिन्यू सेइंग. व्हाट वाज शी सेइंग? शी वाज सेइंग दैट आई केम बैक जस्ट इन टाइम, दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर. एंड when she came near the Horace at that time, she told that I didn't hope to meet a burglar, means सेंध मारने वाला, चोरी करने वाला. उसने सोचा नहीं था कि she will meet a thief, वह एक चोर से मिलेगी. अब Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. अब
When Horace looked her at that time, he was became very nervous. बहुत एकदम नर्वस हो गया. But when she was saying something, she was also smiling. She seemed to be amused at meeting. तो उसको ऐसा लगा कि शायद मैं बच जाऊं, because he was thinking that he was caught by her. उसको ऐसा लग रहा था कि वह पकड़ लिया गया उसके द्वारा. He might avoid trouble if he treated her the right way. And Horace thought that if he will behave properly with her, she maybe leave her. हो सकता है कि she maybe leave him, वह उसे छोड़ दे अगर वह उसके साथ अच्छा सा व्यवहार करेगा. He replied, I didn't expect to meet one of the family. जब उस लड़की ने बोला कि मुझे नहीं आशा थी कि मैं यहां आऊंगी और एक मुझे चोर से मिलने का मौका मिलेगा, तो अब होरेस बोलता है कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं जब यहां आऊंगा तो मैं एक इस जो है घर के मेंबर से मिल जाऊंगा. मैं ऐसा नहीं आशा कर रहा था. सी नोडेड मतलब सर हिला करके, मीन्स सी एक्सेप्टेड इट. I see what an inconsequence convinces it is for you to meet me. What are you going to do? अब वो बोलती है कि तुम करने क्या जा रहे हो, कर क्या रहे हो तुम. तो होरेस बोलता है, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन. ही रिप्लाइड दैट, उसे ऐसा लगा जब कि वह पकड़ लिया गया, तो when she asked what are you doing and what do you want to do, at that time he said that I want to run. मैं भागना चाहता हूं. अब जब वो पकड़ लिया गया तब of course you could do that, and that lady said that yeah, as your wish, you can do anything, whatever you want, but I would telephone the police and tell them all about you. They would get you at once. Okay, no problem, you may go out. If you will run, at that time I will call the police and the police will catch you. पकड़ लेगी तुमको. भागो को कोई बात नहीं है. You may go, you may run, तुम जा सकते हो, भाग सकते हो. मुझे तो एक कॉल करना है पुलिस को. जैसे मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आएगी और तुम्हें पकड़ ले जाएगी. अब यहां पर देखिए ये क्या होना है, होरेस है, वो प्रेटी लेडी आती है हु वाज वेयरिंग रेड ड्रेसेस, एंड हियर ये कौन है, सेरी है, जो कि इसको देख करके भौंकता है. और यहां पर देखिए गैरेट है, जो मतलब अलाव है. आइए ये उसके टूल्स हैं कुछ के, होरेस के, जो उस सेफ को खोलने के लिए लाया था. तो Horace said, I would of course cut the telephone wire first, and then he hesitated. Then Harris said that, oh, you will call to police? पुलिस को बुलाओगी? No problem. I will cut the wire of the telephone. मैं टेलीफोन का वायर ही काट दूंगा. Then how will you call to police? कैसे बुलाओगी पुलिस को? तो अब वो थोड़ा सा हेजिटेट होकर के बोलता है. आई स्माइल ऑन हिज फेस, मीन्स ही वांटेड टू टेक इन हिज फेथ. वो उसे अपने विश्वास में लेना चाहता था. सो ही वाज टॉकिंग लाइक दिस, इसलिए वो ऐसा बात कर रहा था. वो सोची कि उसको थोड़ा विश्वास हो जाएगा, इसलिए ही वाज टॉकिंग विथ स्माइल. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. जब वो बोला कि when I will cut the wire, at that time how I will call the police, and at that time I will get few hours, and that hour is sufficient for me to run. और वो समय मेरे लिए तो भागने के लिए पर्याप्त है, मैं भाग जाऊंगा. वो क्या बोलती है फिर,
Horace paused means stopped, and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. पहले जब उसने ऐसा बोला तो she looked at him seriously, you would hurt me. बोलती है कि ऐसा करोगे तुम? कर सकते हो, टेलीफोन का वायर काट सकते हो? तो हैरिस बोलता है, अरे यार जस्ट आई एम जोकिंग, आई एम किडिंग, मजाक कर रहा था यार, सिर्फ मैं तुम्हें डराना चाहता था, लेकिन तुम हो कि यू डिडंट, तुम डरी नहीं। वो बोलते यू डिडंट फ्राइटन मी, लेकिन तुम मुझे डरा नहीं सकते। ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे डरा लोगे, तुम मुझे डरा ही नहीं सकते। Horace suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me, let me go. Then here Horace requested or pleaded to the lady, that will be too good for me if you will forgive me, and if you will forget everything whatever you have seen. जो कुछ आपने देखा आप भूल जाओ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और लेट मी गो, मुझे जाने दो, फॉरगिव मी वंस, एक बार मुझे माफ कर दो। तो बोलती क्या है, द वॉइस वॉज सडनली शार्प। अब जो द लेडी हु वॉज टॉकिंग इन अ स्वीट वॉइस, नाउ हर वॉइस कन्वर्टेड इनटू हार्श वॉइस। सी सेड, व्हाई शुड आई, क्यों छोड़ दूं भाई, व्हाई, क्यों छोड़ूं तुम्हें, यू आर गोइंग टू रॉब मी, इफ आई लेट यू गो you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. क्यों छोड़ूं तुम्हें, छोड़ूंगी ही नहीं। अगर मैं तुम्हें यहां से छोड़ूंगी तो तुम किसी न किसी को जरूर लूट लोगे। You will loot something, someone. तुम किसी न किसी को लूट लोगे। And what is our responsibility? Our responsibility is to save our society. और हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम क्या करें, अगर हम अपने को बचा रहे हैं तो अपनी सोसाइटी को भी बचाएं, अपने समाज को, अपने इर्द गिर्द रहने वाले को भी बचाएं। अगर मान लो मैं तुम्हें यहां से जाने देती हूं तो यू विल लूट समथिंग, समवन, तुम किसी न किसी को लूट लोगे। तो वो बोलता है, Horace smiled, I am not a man who threatens society. अरे मैम ऐसा नहीं है, I am not kind of that person who will loot or who will rob someone. अरे मैं ऐसा नहीं हूं कि जो किसी को भी लूट लूंगा। अरे I steal only from those who have a lot of money. अरे मैं तो सिर्फ ऐसे घरों में सेंध मारता हूं, बर्गलिंग करता हूं जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, और आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और चोरी करने का मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है, मैं किसी अच्छे कारण से चोरी करता हूं, मैं ऐसा वैसा चोर नहीं हूं। मैं ऐसा चोर हूं बिकॉज एज आई टोल्ड यू ही वॉज अ वेरी फॉन्ड ऑफ द बुक्स and he put the rare books and costly books, and he hadn't money so he wanted to rob to someone. वह ऐसा था, किताबों का बहुत शौकीन था, और ऐसी वैसी किताबें नहीं जो कि रेयर बुक्स होती हैं, बहुत दुर्लभ, जो जल्दी किसी के पास मिलती नहीं, और ऐसी किताबें महंगी मिलती हैं, और महंगी के मिलने के लिए उसके पास पैसे होते नहीं थे, तो सो ही रॉब्ड समवन, इसलिए वह क्या करता था, किसी न किसी को लूटता था। तो अब वो ये बताना चाहता है कि आई एम नॉट काइंड ऑफ दोज रॉबर्स हु रॉब, आई एम अ वेरी गुड, आई एम अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन। मेरे पास अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं, और मेरे चोरी करने का भी कारण बहुत अच्छा है। और लास्ट चीज ये है कि मैं जेल से बहुत डरता हूं। आई डोंट वांट टू गो इन अ प्रिजन और द जेल, आई डोंट वांट टू गो टू जेल, मैं जेल नहीं जाना चाहता। अब जैसे ही उसने ऐसा बोला कि मैं जेल नहीं जाना चाहता,
वह लड़की, वह औरत तुरंत उसको फिर जो है भयभीत करने लगती है। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड as he told, I don't want to go to jail. At once she started to laughing. हंसना शुरू कर देती है, और उधर वो हंसती है, इधर हॉरेस बेचारा जो है गिड़गिड़ा रहा है, बेगिंग कर रहा है, थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूड हर। अब वो सोचती है कि अब तो पक्का जो मैं वॉट एवर आई विल थिंक ही विल डू इट, जो कुछ भी मैं सोच रही हूं, वॉट एवर आई एम थिंकिंग ही विल डू इट, जो कुछ भी मैं सोच रही हूं वो पक्का करेगा। क्यों? कि ही डिडंट वांट टू गो टू जेल, वो जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए ही डजंट वांट टू गो टू जेल। अब लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, बट आई एम desperate. Let me go, and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. And once again Horace pleaded or requested to the lady, please let me go, जाने दो मुझे, and I am promising you I will keep my words. मैं आपसे वादा करता हूं I will never do these types of business, these types of robbery in my life. अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरा, और आपको पता है पकड़ने के बाद बहुत सारे लोग प्रिटेंडिंग करते हैं, तो ही वॉज डूइंग सेम टाइप्स ऑफ जॉब, वह भी यही कर रहा था, वह बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। शी वॉज साइलेंट, वॉचिंग हिम क्लोजली। वेन Horace was pleading or requesting, at that time she was standing there near to him, and she was watching everything very silently. Then she said, you are really afraid of going to prison, aren't you? ये क्वेश्चन टैग है, ये क्वेश्चन टैग भी आप में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन टैग हम बाद में पढ़ेंगे ग्रामर में। तो देखो, अब वो बोलती है, सही बोल रहे हो, आपको जेल से बहुत ज्यादा डर लगता है, रियल में तुम जेल नहीं जाना चाहते हो, इसीलिए इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। अब वो आती है उसके पास और उसके सर को हिलाती कहती है, अरे मुझे तो हमेशा ऐसे लोग पसंद है। अब शी पिक्ड अप अ silver box from the table and took a cigarette from it. अब वो क्या करती है, एक बॉक्स उठाती है, आपने सिगरेट का पैकेट देखा होगा, सिल्वर कलर का होता है, तो वह क्या करती है, एक सिल्वर बॉक्स टेबल से उठाती है और उसमें से एक सिगरेट निकालती है और एंड गेव हर हिज। तो क्या करता है हॉरेस, eager to please her and seeing that she might help him, when she was taking off the cigarette at that time, Horace thought that he would help her, उसे उसकी मदद करनी चाहिए। तो उसने क्या किया कि at once he take his lighter and he wanted to hand over her. वह तुरंत अपनी क्या करता है, लाइटर को निकालता है और उसकी तरफ वह जो है दिखाता है। और फिर यहां पर क्या होता है, जब उसको दिखाता है, यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड हर, और उसकी तरफ ऐसा लाइटर करते हुए, ऐसा लाइटर दिखाते हुए बोलता है, प्लीज मैम लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। फिर यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। हाँ ओके, डोंट वरी, आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगी,
बट यू हैव टू डू समथिंग फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। होरेस आइटम्स रेडी, ही सेड व्हाट एवर यू से आई विल डू इट, जो कुछ कहोगी मैं करूंगा, तुरंत रेडी हो जाता है। अब वो बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल टू आवर बैंक। अब वो बैंक मतलब सेफ। अब वो क्या बोलती है कि जब मैं लंदन में थी तो लंदन जाने से पहले आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल टू आवर बैंक, और मैंने अपने हस्बैंड से ये प्रॉमिस किया था कि मैं क्या करूंगी, उस सेफ से अपने ज्वेलरीज को ले लूंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं क्या की, अपने इस ज्वेलरी को यहीं पर सेफ में ही छोड़ दी। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट सो आई केम डाउन टू गेट देम। अब वो बोलती है कि देखो एक्चुअली क्या है कि मैं यहां पर आई हूं अपनी ज्वेलरी को लेने, और मैंने अपने हस्बैंड से ये प्रॉमिस भी किया था कि मैं यहां से जाते समय ले लूंगी, लेकिन आई फॉरगॉट हियर, मैं यहीं पर इसको भूल गई। और समस्या तो ये हो गई कि अब मैं इसे पहनना चाहती हूं और आज की रात ही मुझे एक पार्टी में पहनना है, लेकिन कह के वह चुप हो जाती है। अब जैसे ही वह इतना कह के चुप हो जाती है तो सामने वाला जाहिर सी बात कुछ ना कुछ सोच लेता, ओह, तो वो तुरंत सोचता है, होरेस स्माइल्ड, you have forgotten the number to open the safe, haven't you? अब बोलता है, ओह, अब मैं समझा कि लेकिन आपने क्यों बोला, लेकिन आपकी समस्या यह है कि you completely forgot the numbers of the locker। आपको उस सेफ की जो लॉकर लगा है उसका नंबर ही आप भूल गई, तो आपको कैसे मिलेगा? तो यस रिप्लाइड द यंग लेडी, तो तुरंत बोलता है, हाँ 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 यही, मैं उस नंबर को तो भूल गई, अब मैं कैसे जो है इसको ले पाऊंगी, और मैं अपने हस्बैंड से बोलूंगी तो वो मुझे और डांटेंगे। इसलिए तुम मेरा एक काम करोगे, तुम एक काम करो कि इस लॉकर को किसी भी तरीके से खोल दो, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। अब वो बोलता है, ओके प्रॉमिस, पहले प्रॉमिस करो कि अगर मैं आपकी इस सेफ को खोल दूंगा, लॉकर को खोल दूंगा, तुम मुझे जाने दोगी। और एक चीज और, मैं लॉकर को 1 घंटे के अंदर खोल दूंगा, और ये लेकिन ये आपका जो लॉकर है ये टूट जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वुडंट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। अब वो बोलती है कि यू डोंट वरी, यू ब्रेक इट, तुम इसके लिए परेशान मत हो, तुम इसे तोड़ दो, क्योंकि आई हैव अ सफिशिएंट टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। व्हेन माई हस्बैंड विल कम एट दैट टाइम आई विल मेंड इट बिफोर कमिंग माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड से आने से पहले ही मैं इसको सही करवा लूंगी, तुम इसके विषय में परेशान मत हो। अब वो क्या करता है कि तुरंत जब ऐसा वो बोलती है तो उसके चक्कर में आ जाता है। एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन्ड द सेफ, और मैंने आपको पहले बताया कि वो ताला बनाने वाला था, और ताला बनाने वाले को पता भी होता है कि ताला तोड़ा कैसे जाता है अच्छे से। तो उसने क्या किया, 1 घंटे के अंदर ही उस सेफ को खोल दिया, तो और खोल करके क्या किया, उसकी ज्वेलरी उसको दे दिया, एंड गॉन हैप्पीली अवे, और खुश होकर के वहां से चला जाता है। अब उसने क्या किया, तुरंत अपने ग्लव्स को भी निकाल दिया था, पहले जो ग्लव्स पहना था, अब उसको लगा कि कोई फिंगरप्रिंट की बात तो है नहीं, जिसकी ज्वेलरी है वो तो आ ही गया है, इसलिए उसने अपने क्या किया था, ग्लव्स को भी उतार दिया था। अब फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, और 2 दिनों तक, जैसे कि उसने वादा किया था ना होरेस ने कि आई विल नॉट डू द रॉबरी नेक्स्ट टाइम, मैं दूसरी बार लूटपाट नहीं करूंगा, मैं इसे छोड़ दूंगा, तो 2 दिनों तक उसने उस वादे को निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन हुआ, अब उसके दिमाग में फिर वही समथिंग चलने लगा।
अब however he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. अब वो किताबें those books was very important. वो किताबें बहुत महत्वपूर्ण थी. And he wanted to buy those books. और वो उन किताबों को खरीदना चाहता था, but he hadn't money, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था. Then once again he thought about the next step, means he will rob the next step. वो उसने क्या किया कि बोला कि मैं अब दूसरी स्टेप को क्या करूंगा, दूसरी स्टेप को हाथ मारूंगा और तोड़ूंगा. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान. लेकिन वो ऐसा सोच रहा था, बट ही कांट डू. वह ऐसा नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पुलिस ने उसको क्या कर लिया. बाय नून पुलिस हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट सोडवग्रैंग. क्योंकि जिस घर में उसने ताला खोला था उस घर में चोरी हो गई थी और उस चोरी के लिए पुलिस इसको पकड़ ली थी. हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन्ड द सेफ विदाउट ग्लव्स वेयर ऑल ओवर द रूम. पूरे उस कमरे में उसके फिंगरप्रिंट मिले थे, क्योंकि उसने क्या किया था. ही रिमूव्ड हिज ग्लव्स. उसने अपने ग्लव्स को उतार करके उस सेफ को खोला था. और and no one believed him when he said that the wife of owner of the house had asked him to open the safe for her. और वो जाकर के बोलता है, I haven't done these types of things. मैंने तो ऐसा किया ही नहीं. अरे मैंने तो लॉकर तब खोला जब इस घर की मालकिन ने मुझसे खोलने के लिए बोला. और वो ऐसा बोलता है, सफाई देता है. द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड. और जो उस घर की जो मालकिन थी कैसी थी? ग्रे हेयर वाली थी, शार्प टंग, वुमेन ऑफ 60 और लगभग 60 साल की थी. जबकि वो जो आई थी उसके पास, शी वाज लुकिंग वेरी प्रेटी, वेरी ब्यूटीफुल, एंड शी वाज यंग आल्सो. जवान थी, इतनी उम्र दर्द नहीं. सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस. उसने कहा, बेवकूफ, मैं घर की मालकिन हूं. आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस. मैं इस घर की मालकिन हूं और तुम किसकी बात कर रहे हो मूर्खों की तरह. हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. नाउ अब हॉरेस को क्या किया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है. और वह वहां पर जो लाइब्रेरियन असिस्टेंट के रूप में वहां पर रहता है. ही ऑफन थिंक ऑफ द चार्मिंग. और ऑफन मीन्स अक्सर. वह अक्सर जो है उस चार्मिंग मीन्स अट्रैक्टिव, उस आकर्षक चेहरे को सोचता था. क्लेवर यंग लेडी, चालाक लड़की के विषय में. हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज. क्योंकि वह भी उसी व्यवसाय की थी. मतलब वो भी कौन थी? चोर थी. हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसको फंसाया. ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स. और वह एकदम क्रोधित हो जाता था. क्यों? क्योंकि जब कभी ऐसा बोलता है कि एक चोर दूसरे चोर का सम्मान करता है, इस बात से वह खींच जाता है. तो देखो यहां पर हमने आपको बताया क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इसका नाम क्यों रखा गया. बिकॉज हियर द मैटर ऑफ द ट्रस्ट. यहां पर विश्वास की ही बात थी. और ये रियल भी है कि अगर आप किसी को, एक चोर को फंसाना चाहते हो तो चोर जैसा दिमाग लगाओ तो इस चोर को फंसा सकते हो. तो यहां पर देखो, दैट लेडी वाज आल्सो अ थीफ. वो भी एक चोर थी, लेकिन उसने कैसे हॉरेस को क्या किया? फंसाया. किस तरीके से फंसाया? उसी से सेफ को खुलवाया, ज्वेलरी ली और लेकर के चली गई. तो इट वॉज द माइंड ऑफ हर. तो दिस इज द कंप्लीट ऑफ दिस लेसन. I think you completely understand this lesson. Thank you. That's all.